نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الرحیق المختوم کی چھٹی قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سعد بن بکر پہنچ گئے اور حضرت حلیمہ یعنی اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا دودھ پلایا، آپ کی 2 سال تک پرورش کی اور آپ کو اپنے پاس ہی رکھا۔ یہ بالکل ایک کانٹریکٹ کی طرح ہوتا تھا عرب میں کہ ایسی کسی خاتون جو کہ شہری علاقے کی نہیں ہے ان کے حوالے یہ بچے کیے جاتے تھے تاکہ کم از کم 1.5 سے 2 سال تک وہ ان عورتوں کا دودھ پئیں۔ اور یہ عورتیں جو دیہات کی عورتیں سمجھی جاتی تھیں، گاؤں کی عورتیں سمجھی جاتی تھیں، کیونکہ یہ شہر میں نہیں ہوتی تھیں، شہر میں یمن سے شام سے لوگ آتے تھے اور اس وقت یہ بڑا خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی وبائی مرض نہ پھیل جائے اور وہ بچوں پہ اس اثر انداز نہ ہو، اس لیے بچوں کی کہہ لیجئے کہ اچھی نشو نما کے لیے اور ان کی زیادہ اچھی پرورش کے لیے کہ ان کو ایک اچھی ابتدائی خوراک ملے، ٹھوس خوراک ملے کہ وہ مضبوط جسامت کے مالک بنے، اس غرض سے بھی عرب ممالک میں بچوں کو دائیوں کے حوالے کیا جاتا تھا۔ انہی 2 سال کے عرصے کے دوران حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ کعبۃ اللہ کے متولی بھی ہیں اور آپ اللہ رب العزت کے ایک مقرب بندے ہیں، نیک پرہیزگار، اور پورے اہل عرب میں آپ کو سب پسند کرتے ہیں، لوگ اپنے مسائل آپ سے بیان کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت ایک بادشاہ جس کا نام تاریخ میں سیف ذی یزن ملتا ہے، وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ آئیں، میرے دربار کے مہمان بنیں، اور بڑی آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کی شان میں قصیدے پڑھواتا ہے اور لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ کی شان میں، آپ کی تواضع میں بڑے بڑے دسترخوان لگتے ہیں۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اہل عرب میں کعبۃ اللہ کی چابیاں اور متولی ہونے کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا رتبہ اور بڑا مقام ہے، اور جس طرح ماضی کی پچھلی قسطوں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس قدر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک مقام رکھتے تھے اہل عرب میں اور حاجیوں کی نظر میں، تو بڑے بڑے بادشاہ ان کے آگے جھک جایا کرتے تھے اور ان کی تعظیم میں اور ان کی قدر میں اور ان کی عزت میں اپنا سب کچھ کہتے تھے کہ یہ قربان ہے اور آپ اللہ رب العزت کے حضور ہم سب کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیف ذی یزن نے ان کی دعوت کی اور دعوت کرنے کے بعد وہ اکیلے میں ان کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ایک کمرے کی جانب لے گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات ہے جو سیف ذی یزن ان سے کرنا چاہتا ہے۔ سیف ذی یزن نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے اور مجھے کئی لوگوں نے یہ بتایا ہے جو مذہبی پیشوا ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ مکے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ آگے چل کر پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور جو کوئی اس کا دور پا لے گا، یعنی جس وقت وہ بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد کا جو دور ہے، اور وہ اس پیغمبر آخر الزماں کے بتائے ہوئے پیغام پر عمل کرے گا، گویا کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سیف ذی یزن نے کہا کہ حضرت عبد المطلب تم مکے میں ہوتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو کہ کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسی شخصیت مکے میں ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ میرے دور میں نہیں ہوگا، اس نے یہ افسوس کا اظہار کیا کہ کاش مجھے وہ دور ملے کہ جب وہ پیغمبر آخر الزماں اللہ کا پیغام پہنچائے اور میں اس پر ایمان لاؤں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ذکر کر رہا ہے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو مخفی رکھا، خفیہ رکھا، اور سیف ذی یزن سے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو 2 سال مکمل ہو چکے تھے۔ 2 سال کا عرصہ جہاں مکمل ہوا، وہیں اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب واپس حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کرنا تھا، اور آپ اپنے وعدے کے مطابق ان کی پرورش کرتے ہوئے اور وہ تمام تر 2 سال کے جو ایام آپ نے اپنا دودھ انہیں پلایا، بڑی آپ کے قبیلے کے اوپر، آپ کے خاندان کے اوپر، آپ کی پوری فیملی کے اوپر
बरकतों का नुज़ूल हुआ। बीबी हलीमा ने इस बात को बड़ा जाना और इन 2 सालों में हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत, अक़ीदत और उल्फत हो चुकी थी कि आप शायद अपने सगे बच्चों से ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने लगी थी, और इसमें कोई शुबा भी नहीं है। अब आप तारीख़ का एक ऐसा मंज़र देखेंगे कि जब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वादे के मुताबिक 2 साल मुकम्मल होने के बाद, अपना दूध पिलाने के बाद वापस मक्का आती हैं और बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द करने आ रही हैं, तो यहाँ 2 माओं का एक डायलॉग हो रहा है। और तारीख़ में ऐसा डायलॉग आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक वो माँ है जिसने अपना दूध पिलाया और एक वो माँ है जिसने उस बच्चे को जना है, यानी हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दोनों की ख्वाहिश ये है कि बच्चा एक दूसरे के पास रहे, लेकिन एक हकीकी माँ है और एक दाई है। अब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कायल कर रही हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी उल्फत के साथ, अकीदत के साथ। एक चाह झलक रही है, उनकी आंखों में वो मोहब्बत टपक रही है और आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी आमना के हवाले कर दें। तो आप कहती हैं कि अगर जान की अमान पाऊँ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे मालूम हुआ है कि मक्के के अंदर कोई वबा फैली हुई है और उसका कोई असर जो है बच्चों पे ना हो। बच्चों की बड़ी नाजुक होती है सूरत हाल, उनको नशोनुमा की ज़रूरत होती है। बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी समझ रही हैं कि हज़रत बीबी हलीमा ये चाहती हैं कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद अपने पास रखें। लेकिन यहाँ 2 माओं का एक डायलॉग है, तारीख़ हमें ये बता रही है। बीबी आमना कहती हैं कि 2 साल तो अब गुजर गए हैं और नशोनुमा भी हो गई, आपका दूध भी पी लिया, अब हम रखते हैं इनको और इनकी किफ़ालत करते हैं। तो बीबी हलीमा कहती हैं कि भाई हमें इनसे बड़ी मोहब्बत हो गई है, इनके बग़ैर तो मेरी बकरियों का दिल नहीं लगता, इनके बग़ैर तो मेरे अपने बच्चों का दिल नहीं लगता। और आप हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि अगर आप इजाज़त दें, मेरा ये इसरार है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे कबीला बनु साद का पूरा ये इसरार है सबका कि ये बच्चा हमारे कबीले में मज़ीद कुछ वक्त रहे। बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इस बात को समझ रही थी, अब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो एक माँ का जो एक दिल होता है या एक औरत की जो एक कैफियत होती है उसको समझते हुए बड़ी खुशी के साथ मुस्कुराते हुए ये कहती हैं कि चलो ठीक है हलीमा, तुम इतना इसरार करती हो और तुमने 2 साल मेरे मोहम्मद की परवरिश की है, तो ठीक है, तुम मज़ीद भी जितना वक्त चाहो इन्हें अपने पास रखो और इनकी हिफाजत करना, इनका ख्याल रखना। अब जो बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पे खुशी आती है, ये खुशी बहुत ही ख़ास है, क्योंकि अब उन्हें ये यकीन हो गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद कुछ अरसा उनके साथ रहेंगे। यूँ हज़रत अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने कबीले में ले जाती हैं। अब जब कबीले में ले जाती हैं, पूरे कबीले की एक खुशी का आलम होता है और भी जो उस कबीले की दाई होती हैं वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती हैं। तो यहाँ पे एक दाई मज़ीद आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दूध पिलाती है और तारीख़ में हमें ये मिलता है कि उस दाई ने, वो भी कबीला बनु साद की थी, और उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं, उनको भी दूध पिलाया था। लिहाजा इस रिश्ते से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि सगे चचा भतीजे भी हैं और इस रिश्ते से रिदाई भाई भी बन जाते हैं, क्योंकि दोनों को एक ही औरत ने अपना दूध पिलाया है। ये वक्त गुज़रता गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बड़े हो रहे हैं और आपकी जो बड़ी बहन है यानी हज़रत हलीमा की जो बेटी हैं, आपकी रिदाई बहन हुई हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो आपको अपनी गोद में खिलाया करती थी, क्योंकि वो आपसे बड़ी थी चंद साल और अपने बहन भाइयों से बढ़कर आपका ख्याल रखते थे। और आपके उस कबीले में होने की वजह से पूरा कबीला बड़ा खुशहाल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 5 साल जब हुई तो आप बच्चों के साथ यानी अपने रिदाई भाई बहनों के साथ और दीगर उस कबीले के बच्चों के साथ खेल रहे थे और साथ में कुछ लोग बकरियां भी चरा रहे थे। आप खेलते खेलते ये सब बच्चे जो हैं आगे की जानिब बढ़ गए जहाँ कोई बड़ा उस वक्त मौजूद नहीं था। यहाँ पर तारीख़ का हमें वो बाब मिलता है जो आज की तारीख़ के लोगों के लिए बहुत ख़ास और समझने के काबिल है। यहाँ वाक़या शक़ सदर हुआ। शक़ सदर कहते हैं सीने को चीरना यानी दिल को साफ कर देना।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्र मुबारक अभी 5 बरस है और आप अपने रिदाई भाई बहनों के साथ और उस कबीले के मज़ीद बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मौजूद हैं एक मकाम पे। इसी दौरान हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक इंसान के रूप में आते हैं और वो आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेते हैं और बड़े तहम्मुल के साथ ज़मीन पर लिटा देते हैं और इस दौरान वो आपका सीना चीरते हैं। ये मनाजिर जब बाकी बच्चे देखते हैं तो उन पे एक हैबत तारी हो जाती है कि हमारे साथ खेलने वाले मोहम्मद को एक शख्स ने लिटा दिया है, उनका सीना चीरा गया है। याद रखिएगा कि इस पूरे वाक़े में कहीं खून नहीं निकला, या ये एक रूहानी अमल हुआ है जिसमें उनका सीना चीरा गया है और हज़रत जिब्रील अमीन ने उनका दिल यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अपने हाथ से निकाला और उस दिल में से एक हिस्सा जो कि एक लोथड़े की सूरत में था उसे अलहदा कर दिया और फिर उस दिल को आब ज़मज़म से धोकर वापस अपनी जगह पे कर दिया। और जब आप अलैहिस्सलाम ने यानी हज़रत जिब्रील अमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे हाथ रखा तो वापस वो सीना जुड़ गया, यहाँ ना खून के कतरे टपके। लेकिन जब बच्चों ने ये मनाजिर देखे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेल रहे थे और शक्के सदर का ये वाक़या बच्चों के सामने होना, तो उन्हें ये ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया है। और दौड़े दौड़े अम्मा हलीमा के पास पहुँचे सारे बच्चे और कहते हैं अम्मा हलीमा देखें उस जगह पे जहाँ हम खेल रहे थे वहाँ एक शख्स आया और मोहम्मद को कत्ल कर दिया, ज़मीन पर लिटाया और सीना चीर दिया। अम्मा हलीमा परेशान हो गई क्योंकि अम्मा हलीमा के पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर अमानत मौजूद थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बच्चों से ज़्यादा बढ़ के थी। ना आपने अपने इर्द गिर्द देखा, आप दौड़ती हुई भागी और आप चिल्लाती हुई भागी, मेरे मोहम्मद मेरे मोहम्मद। और जब आप उस मकाम पे पहुंची तो आप देखती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन सही सलामत हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत उस वक्त तारीख़ में मौजूद हैं, जैसे आपको बुखार की सी कैफियत हो गई है और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस शक्के सदर का जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े को उन बच्चों के ज़रिए अम्मा हलीमा ने सुना और अम्मा हलीमा के ज़रिए आगे ये वाक़या रिवायात में गया। रिवायात और सही मुस्लिम में ये रिवायत बिलखुसूस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के हवाले से भी है जिन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्के सदर का ये वाक़या बताया था। अब जानने वालों के लिए और अहले इल्म के लिए और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम इंसानों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इंसान जब बशर की सूरत में इस दुनिया में होता है, यानी हम और आप जब इस दुनिया में आते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बशर के अंदर उसकी ख्वाहिशात को रखा है। ये जो शक्के सदर का वाक़या है, ये यही वाक़या है कि दिल के साथ वो जो एक लोथड़ा लगा हुआ है, वो जो एक टुकड़ा लगा हुआ है, वो ख्वाहिशात का है। वो उन ख्वाहिशात का है कि जूं जूं इंसान अपनी उम्र के साथ आगे बढ़ता रहता है तो उसको नफसानी ख्वाहिशात का दायरा अपने अंदर घसीटता है, अपने अंदर लेता है। चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं, और उन्होंने अपने करैक्टर से आगे ये पैगाम देना है, अमल करके दिखाना है। लिहाजा ये शक्के सदर का वाक़या तारीख़ में इसलिए भी है कि तमाम इंसान ये समझ लें कि हम इंसानों के दिल में भी वो टुकड़ा, वो नफसानी ख्वाहिशात, वो दुनिया की ख्वाहिशात मौजूद हैं। अब हमारे सीनों को कोई चीर के वो नहीं निकाल सकता, लेकिन हम अच्छे अमल से, सब्र से, बर्दाश्त से, कुरान की तालीमात से, अल्लाह के अहकामात से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए इस नफसानी ख्वाहिशात और दुनिया की ख्वाहिशात के लोथड़े को ख़ुद ख़त्म कर सकते हैं। लिहाजा हम अपने दिलों को पाक कर सकते हैं। हम अपने दिलों को इस तरह पाक कर सकते हैं जिस तरह हम पहले रोज़ इस दुनिया में आए थे। शक्के सदर का ये वाक़या आज की इस किस्त में हमने आपके सामने रखा और अब अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि जब अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये ख़तरा महसूस होने लगा कि न जाने कभी ऐसा ना हो कि ये वाक़या दोबारा इस किस्म का पेश आए या कोई ऐसी सूरत हाल हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को ख़तरा हो, तो आपने ये तय कर लिया कि आप अम्मा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का छोड़ने जाएंगी।
अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में वापस आने लगते हैं तो इस रास्ते में एक और वाक़या पेश आता है अम्मा हलीमा के साथ, और तारीख़ ये बताती है कि इस दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खो गए थे और अम्मा हलीमा परेशान हुई थी। क्या ये वाक़या था, ये आपको हम अगली किस्त में बताएंगे। इस किस्त में जाने अनजाने में मुझसे कोई लफ्ज़ ऐसा निकल गया हो जो गलती के ज़ुमरे में आता हो तो मैं अल्लाह के हुजूर माफ़ी का तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।